بلوچستان میں مالی سال 2021-22 کے دوران 32 ارب 63 کروڑ سے زائد کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ قلات میں ایف سی کیمپ پر مسلح افراد کا حملہ، دو طرفہ فائرنگ سے خاتون زخمی، منارف گوریلا کمانڈر گلزار امام کے بھائی نے خودکشی کر لی۔ آج جولائی کی 15 تاریخ ہے، دن ہفتہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب خوش بات۔ سرکاری ذرائع کے مطابق کلات کوئنگ کے مقام پر گزشتہ شب نامعلوم مسلح افراد نے ایف سی کیمپ پر حملہ کیا۔ دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون معمولی زخمی ہوئی۔ ذرائع کے مطابق مزید جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ مائکرو ویب بلاگنگ ذرائع کے مطابق پنجگور میں بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے منارف کمانڈر گلزار امام کے چھوٹے بھائی گوری ولد امام نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ تاحال خودکشی کے وجوہات معلوم نہ ہو سکے۔ وفاق نے بلوچستان میں 584 کلومیٹر روڈ کی تعمیر کے لیے 12 ارب روپے مختص کر دیے۔ وفاقی حکومت نے بلوچستان میں 584 کلومیٹر روڈ کی تعمیر کے لیے 12 ارب جبکہ 3 مختلف شاہراہوں کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے 27.1 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ وفاقی پی ایس ڈی پی کی دستاویزات کے مطابق وفاقی حکومت نے آئندہ سال کے مالی پی ایس ڈی پی 2023-24 میں کراچی سے کرارو وڈ سے خزدار تک 273 کلومیٹر روڈ کی تعمیر کے لیے 6 ارب جبکہ کرارو سے وڈ اور کچلاک سے چمن تک 187 کلومیٹر روڈ کی تعمیر کے لیے 6 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہب سے دریجی دادو M7 موٹر وے کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے 20 کروڑ، جیکب آباد سے ڈھاڈر تک N65 کی نیشنل ہائی وے کی ڈیولائزیشن کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے 4.2 کروڑ، خاران طب سیما 124 کلومیٹر روڈ کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے 2.9 کروڑ مختص کیے گئے ہیں۔ بلیدہ میں مقامی صحافی کے گھر پر فائرنگ، نیشنل پارٹی کا ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ کیچ کے علاقے بلیدہ میں گزشتہ شب نامعلوم مسلح افراد نے مقامی صحافی و استاد صدام آدم کے گھر پر اندھادھند فائرنگ کی گئی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ علاوہ نیشنل پارٹی بلیدہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں بلیدہ میں ناظم صدام آدم کے گھر پر فائرنگ کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست اور انتظامیہ کو اس واقعے کا سراغ لگا کر ذمہ دار افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لانا چاہیے۔ بیلا میں مسافر کوچ کو حادثہ، 3 افراد ہلاک، 20 سے زائد زخمی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق لسبیلا کے علاقے بیلا کے قریب حادثہ پیش آیا جہاں ایک مسافر کوچ تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی، جس کے نتیجے میں کوچ میں سوار 3 مسافر ہلاک ہو گئے اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق مسافر کوچ کوئٹہ سے کراچی جا رہی تھی۔ ایف آئی اے نے جنسی ہراسگی اور بلیک میلنگ میں ملوث ملزم لورالائی سے گرفتار کر لیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے عملے نے ایک کارروائی کے دوران جنسی ہراسگی اور بلیک میلنگ میں ملوث ملزم کو بلوچستان کے شہر لورالائی سے گرفتار کر لیا۔ ملزم احسان اللہ نے شکایت کنندہ کی قابل اعتراض تصاویر موبائل فون کے ذریعے شیئر کی تھیں۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق ملزم نے قابل اعتراض مواد کی آڑ میں شکایت کنندہ کو بلیک میل کر کے اس سے پیسے بھی وصول کیے۔ ملزم گزشتہ کئی ماہ سے شکایت کنندہ کو بلیک میل کر رہا تھا، جس کے قبضے سے موبائل، سمز اور لیپ ٹاپ برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزم کے موبائل کو قبضے میں لے کر فرانزک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ ملزم کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ اس سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں مالی سال 2021-22 کے دوران 32 ارب 63 کروڑ سے زائد کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اس حوالے سے جاری آڈٹ رپورٹ کے مطابق بلوچستان حکومت بجٹ کا 11.67% حصہ 53 ارب 44 کروڑ روپے خرچ نہیں کر سکی۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ترقیاتی کاموں پر بجٹ کا صرف 29% خرچ کیا گیا۔ آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 239 ارب کے پی ایس ڈی پی میں صرف 68.7 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ محکمہ بورڈ آف ریونیو بلوچستان میں 3 ارب 39 کروڑ روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں ہوئیں۔ اس کے علاوہ 299.7 ملین روپے کے غیر قانونی اخراجات شامل ہیں۔ 33.7 ملین روپے سے زائد کا ریکارڈ پیش نہیں کیا۔ محکمہ انڈسٹریز میں 2 ارب 17 کروڑ روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں ہوئیں۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق منصوبہ بندی اور ترقیات بلوچستان میں 1
1 अरब 78 करोड़ से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई है, जबकि मवासिलात व तामीरात में 1 अरब 87 करोड़ से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियाँ रिकॉर्ड हुई। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि महकमा सियाहत बलूचिस्तान में 3 अरब 79 करोड़ रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियाँ और महकमा माइंस एंड मिनरल्स में 4 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियाँ हुई। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में भी 2 अरब 45 करोड़ से ज़ायद के गैर कानूनी अखराजात हुए। इसके अलावा बलूचिस्तान पुलिस में 1 अरब 38 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। ज़राअत में 263.3 मिलियन रुपए की बेज़ाब्तियाँ हुई। 209 मिलियन रुपए रिकवरी की सिफारिश की गई। महकमा हायर एजुकेशन में 959.2 मिलियन रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियाँ हुई। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ख़जाना में 480.8 मिलियन रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियों की निशानदेही हुई। महकमा खुराक में 213.2 मिलियन रुपए से ज़ायद के गैर कानूनी अखराजात हुए। महकमा लाइव स्टॉक में 194.5 मिलियन रुपए की बेज़ाब्तियों की निशानदेही हुई। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि महकमा आबपाशी में 312.6 मिलियन रुपए की बेज़ाब्तियों की निशानदेही हुई। महकमा SNGAD में 70.9 मिलियन रुपए की बेज़ाब्तियाँ हुई। ख़जाना एक्साइज एंड टैक्सेशन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लिए किसी भी स्कीम पर अमल दरामद नहीं हुआ। मज़कूरा रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि PSDP में 28 शोबों में से 24 ऐसे थे जिनमें सिर्फ 1% से कम एलोकेशन रखी गई थी। सरकारी महकमों की जानिब से 62 करोड़ रुपए की रकम का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। 25 मिलियन से ज़ायद रकम फ़राड और खुर्द-बुर्द की नज़र हुई। दिन भर की अहम खबरों और हालात हाज़िर पर मुश्तमिल बलूचिस्तान अफेयर्स का रेडियो न्यूज़ सरशबे अहवाल, जिसको आप हर शब बलूचिस्तान वक्त के मुताबिक रात 10 बजे बलूचिस्तान अफेयर्स के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल, गूगल और दीगर पॉडकास्ट पेज पर भी हमारे बलोची और उर्दू न्यूज़ के साथ साथ दीगर पॉडकास्ट मुफ्त सुन सकते हैं। आलमी और इलाकाई खबरें। एक नई तहकीक के मुताबिक गुज़िश्ता 20 साल के अरसे में समंदर के रंग में वाज़ेह तब्दीली वाक़ हुई है और इसकी मुमकिन वजह इंसानी सरगर्मियों के सबब होने वाली मौसमियाती तब्दीली को करार दिया जा रहा है। बरतानिया के नेशनल ओशियानोग्राफी सेंटर और अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के महक़्क़ीन की एक टीम ने एक बयान में बताया है कि आलमी समंदरों का 56% से ज़ायद इससे का रंग बदल चुका है, जिसको कुदरती तब्दीली नहीं कहा जा सकता। बुध के रोज़ जर्नल नेचर में शाये होने वाली तहकीक के मुताबिक ट्रॉपिकल समंदर जो ख़त्ते इस्तिवा से करीब है का रंग गुज़िश्ता 2 दहाई में बदल कर मुख्तलिफ हुआ है। ये तब्दीली उनके माहौल के अंदर होने वाली तब्दीली को भी वाज़ेह करती है। समंदर का रंग दर हकीकत इसके ऊपर की तह पर मौजूद मवाद की वजह से आता है। मिसाल के तौर पर गहरे नीले समंदर के अंदर बहुत महदूद ज़िंदगी पाई जाती है, जबकि हरे रंग का मतलब होता है कि वहाँ एक माहौलियाती निज़ाम मौजूद है जो फाइटोप्लैंक्टन पौधे जैसे माइक्रोब्स जिनमें क्लोरोफिल होता है पर मबनी होता है। ये फाइटोप्लैंक्टन ग़िज़ाई जाल की बुनियाद डालते हैं जो क्रिल मछलियों, आबी परिंदों और समुद्री ममेलियों की ग़िज़ा का सबब बनते हैं। तहकीक की शरीक मुसन्निफ़ा स्टेफनी डॉटकीविच का कहना था कि ये वाज़ेह नहीं कि ये माहौलियाती निज़ाम कैसे तब्दील हो रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम तब्दीलियाँ माहौल की कुदरती तरतीब के तवाज़ुन को ख़राब कर रही हैं। अगर हमारे समंदरों का दर्जे हरारत बढ़ता गया तो वक्त के साथ तवाज़ुन में यह ख़राबी मज़ीद बदतर होती जाएगी। यूरोप में गर्मी की शदीद लहर बरकरार, बड़ी तादाद में हलाकतों का खदशा। बरे-आज़म यूरोप इस साल शदीद गर्मी की लहर का इंतज़ार कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस शदीद गर्मी में बड़ी तादाद में लोगों की अमवात का खदशा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिरीन ने कहा है कि इस साल यूरोप का दर्जा हरारत रिकॉर्ड सतह तक बढ़ जाएगा। इस कदर शदीद दर्जा हरारत के खदशात की वजह से एक से ज़्यादा यूरोपीय मुल्कों ने अपनी अवाम को अभी से ख़तरात पर मुतनब्बे कर दिया है। ये वार्निंग्स एक तहकीक के इंकशाफ के चंद दिन बाद सामने आई है। इस तहकीक में बताया गया था कि यूरोप को गुज़िश्ता साल शदीद गर्मी की लहर का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में 61,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। इसका मतलब है कि इस साल गर्मी की लहर गुज़िश्ता बरस से भी तेज़ होगी और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में हलाकतें भी ज़्यादा होने का खदशा है। इटली में हुकाम के मुताबिक दर्जा हरारत 48.8 डिग्री तक जाने का ख़तरा है। ये एक गैर मामूली दर्जा हरारत होगा। दीगर यूरोपीय मुल्कों में भी दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से तजावज़ कर सकता है। कई यूरोपीय मुल्कों में हुकाम ने पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिए। शिमाली इटली में शदीद गर्मी से 40 साल के एक शख्स की मौत की खबर भी आ गई है। बरतानिया और यूरोप के मकामी मीडिया ने भी इंतबाहात जारी किए हैं और ख़तरे का इजहार किया है कि गर्मी की लहरों का सामना करने वालों को बहुत संगीन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है।
दुनिया भर में 2019 से अब तक मजीद 12 करोड़ 20 लाख अफराद भूख का शिकार हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की 5 अदारों की मुश्तरका रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन में जंग समेत वबाई अमराज, मौसमियाती तब्दीलियों और तनाज़ात की वजह से दुनिया में 2019 से मजीद 12 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा अफराद भूख का सामना कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि अगर रुझानात जूं के थू रहे तो 2030 तक भूख के खात्मे का पायदार तरक्की का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। रिपोर्ट में भूख के खिलाफ जद्दोजहद का मुतालबा करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में मजमूई तौर पर 69 करोड़ 10 लाख से 78 करोड़ 30 लाख के दरमियान लोगों को भूख का सामना रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी वबा कोरोना वबा से कबल इन आदाद शुमार में 2019 के मुकाबले में 12 करोड़ 20 लाख अफराद का इजाफा हुआ है। इस खबर की मज़ीद तफसीलात आप बलूचिस्तान पर पढ़ सकते हैं। आप YouTube पर उर्दू न्यूज़ बुलेटिन शब 10 बजे और Facebook पर 10:30 बजे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये थे अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और YouTube चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन के एडिटर थे कंबर मालिक बलोच और तकनीकी एडिटर थे हुमर करीम बलोच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शब खुशबाद।